machine design lab first. The code, subject code for this lab is BMEC 0806. है ना? As in the morning class, we have seen the design process for the machine element. है ना? What is machine element? In the class, we have told that machine element is element which is having relative motion with respect to other part of the machine, is known as machine element. So in the process of design of machine element, what is the first step? Can you tell what is the first step? So first step is specification, है ना? Specification of the products are needed, है ना? From where you got the specifications? You got the specification from the marketing department, है ना? Because marketing people are in touch with the common people or the customers, so they are more aware about the problems with the customers, है ना? So if there is any customer need is there, so they are the first person who is observing them. So design people get the data from the marketing team for any need or any innovation, है ना? They decide the function of the product. After knowing the function of the product, they do the force analysis. They do the force analysis. So for force analysis, applied mechanics, है ना? Applied mechanics and SOM, strength of materials. The knowledge of these two subjects is very necessary. And after the force analysis, they decide a material, है ना? They decide, don't decide, they select a material, है ना? From the certain alternatives. So they select a material for that. After the material selection, they do one more thing. They decide the failure criteria. है ना? If the load is static, then ultimate tensile strength or yield strength may be the criteria, है ना? Out of these two will be the criteria. If load is fluctuating, then endurance strength is the criteria, है ना? There are some other criteria also. So after fixing the failure criteria as per the requirement, what the designer do? Then he calculates the dimension. Then he calculates the dimension. So for this step, we need a software. We will use MATLAB. The full form of the MATLAB is Matrix Laboratory. So for calculating the dimension, we will use MATLAB. Okay, so in the initial 2-3 classes and today's class, I will give you a demo of MATLAB software. You know, this is very important software. It is an engineering software and it is also useful in research. You know, it has so many toolbox. It is used by mechanical engineers. It is used by electronics people, computer science engineers. All engineering disciplines use MATLAB. So knowledge of MATLAB is very necessary. You know, you can do simulations in the MATLAB. So many functionalities are in this MATLAB available. Okay. So now I am sharing you the screen of MATLAB. But before sharing the screen of MATLAB, I want to share the syllabus of machine design lab 1. So I am clearing this board and I am stop sharing this board and I am sharing you the syllabus. So I am sharing you another file. So that another file is this one. So I am sharing you. So in this file,
So here the code is written wrong. MEE5082. This is the old code. है ना? This is the old code. The new code is BMEC 0806. है ना? But syllabus is almost same. So these are the objective for the machine design lab. So primary objective of this course is to demonstrate how engineering design uses the many principles learned in previous engineering sciences. है ना? मैंने आपको बताया था last अभी lecture class I have told that the knowledge of applied mechanics, mathematics, physics, chemistry, material science, all the engineering disciplines, knowledge is needed for this course, and to show how these principles are practically applied. And now the time for the application. Estimated fatigue strength of the steel parts, apply techniques of combined stress and Mohr circle. Mohr circle you have studied in this SOM in machine design situations. So as per the morning class, machine design data book is again allowed in the lab also, because there are so many formulas which cannot be memorized. So machine design data book is allowed in the lab exams also. So this is the list of the practicals. So this is design and drawing of the quarter joint. So for design purpose, we will use MATLAB, and for drawing purpose, we will use either the AutoCAD or the ProE or the CATIA. So quarter joint, this is first practical. Second is knuckle joint design. Third one is design of the machine component subjected to combined steady and variable loads. When a machine element is under steady and variable loads, then we will design that. Design and drawing of eccentrically loaded riveted joint. When the line of action of the force does not passes through the center of gravity of the rivet system, then it is known as eccentrically loaded riveted joint. Then design and drawing of boiler riveted joint. Design of shaft for combined constant twisting and bending loads. Design of shaft subjected to fluctuating loads. Design and drawing of flange type rigid coupling. So coupling what do? Coupling couples the two shafts. So the transfer from one shaft is possible to the another shaft, but both the shafts are in a straight line. In gears, in the case of spur gears or helical gears, both the shafts are parallel. But in case of coupling, both the shafts are in a straight line. So we will design flange type rigid coupling. Design and drawing of flexible coupling, in which some type of misalignment is allowed. Design of helical spring and leaf spring. So leaf springs you have seen in the automobiles, truck, etc. And helical springs are used in railways. So we will design both the springs. Design of helical springs subjected to fluctuating load. Design of screw jack. In the applied mechanics lab, you have done practical on the screw jack. So in the first year, you have calculated the mechanical advantages, efficiency, and the velocity ratio for this screw jack machine. Now you will design this machine. The next practical is eccentrically loaded welded joint, and the last is eccentrically loaded thread joint. So there is a list is long: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Around 15 number of practicals are there. 15 number of practicals are there. This is the outcome. So in this semester, we will do at least 10 experiments out of these 15. So 10 is compulsory for us. So in the initial 2 or 3 classes, we will do the basics of the MATLAB. So we will be able to design the program for calculating the dimensions of the any practical. So be concentrate, take your copy, write all the commands that I will tell you. Write down करिए और आप if you are having laptop, then this MATLAB software, you load this MATLAB in your laptop, or if you are using mobile, then there is a free version of MATLAB is also there for the mobile applications. कितने जीबी का आता है सेटअप फाइल इसका?
जो मोबाइल पर एप्लीकेशन है वो स्टूडेंट एप्लीकेशन के नाम से है और वो ज्यादा कैपेसिटी का नहीं है। नॉर्मल जो मोबाइल्स हैं उनमें चल जाएगा, उसकी कैपेसिटी हार्डली ये लगा लीजिए 35 MB के आसपास है। सर लैपटॉप पे लैपटॉप हाँ, लैपटॉप में चला रहे हैं तो लैपटॉप में हमारे पास इसका लाइसेंस है मैटलैब का। सो इन GLA देयर इज Prem Babu and Rajनीश in our department. They are looking after that. You just take your laptop to there and they can load the MATLAB there, or you can share the file. They will send you the file, installation file for the MATLAB, and you can load MATLAB in your laptop. ठीक है, सो इट इज मस्ट। आज तो आप डेमो देख लीजिए, उसके बाद जो भी डेमो मैं आपको दूंगा दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन लैपटॉप और योर ओन मोबाइल। सर लैपटॉप हॉस्टल में है सर, यू कैन मोबाइल में आराम से चल जाएगा सर ये? हाँ, मोबाइल में चलेगा बट लैपटॉप इज प्रेफर्ड इफ यू आर नियर मथुरा। वेयर आर यू लिविंग? सर आगरा। आगरा, सो इट इज नॉट जस्ट फार। यू कम टू यूनिवर्सिटी, टेक योर लैपटॉप, 1 घंटे में आके वापस ले जाइए। काफी अलाउड है वाला? हाँ, आना है यूनिवर्सिटी में लैपटॉप लेने के लिए, आप आ सकते हैं। ओके सर। ठीक है, हॉस्टल से अपना लैपटॉप लीजिए और अपना लोड कराइए और फिर उसके बाद घर पे रखिए। तो ये कर सकते हैं सभी लोग, है ना। सो ये मैंने आपको अभी केवल 15 प्रैक्टिकल्स का लिस्ट दिखाया है, जिसमें से हम 10 करेंगे, और ये मैंने सिलेबस की बात हो गई। अब मैं आ रहा हूं सीधा मैटलैब पर, तो मैं इस स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं। आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन एंड आई एम अगेन शेयरिंग ए न्यू स्क्रीन टू यू, एंड दैट स्क्रीन इज मैटलैब विंडो। So I am sharing you the MATLAB. So this is R 2013 version. R 2013 version. So is the screen visible to you? Yes sir. Okay, well done. Screen is visible to you. That's nice. So first I will explain the background. What type of windows are here? So that is, you are seeing here it is written current folder, है ना? This is written current folder. So this is a folder window, and it shows all the files in which folder you are working, है ना? So currently there is a MATLAB folder. The path of the MATLAB folder is C users Rajkumar documents MATLAB. This is the path. So current folder is MATLAB. You can change the folder just by browsing over here. You can browse from here. There is a browsing option. So if you browse here, then you can change the folder path. So let I am clicking over here. So let I select the desktop. Let there is a desktop. Select folder. So now the current folder is desktop, है ना? Current folder is desktop. Okay. So there is a current folder window. Now come to here. This is editor, है ना? This is the editor in which you can write your programs. You can write your programs. तो अभी हम इस विंडो पे फिलहाल प्रोग्राम्स नहीं बनाने वाले हैं, हम अभी प्रोग्राम्स बनाएंगे कमांड विंडो में। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं देयर इज ए कमांड विंडो, है ना? इफ आई क्लोज दिस विंडो, एडिटर विंडो, देन कमांड विंडो विल बी इनलार्ज्ड, है ना? कमांड विंडो थोड़ा सा क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा अच्छी दिखने लगेगी। अब राइट साइड में आइए आप। सो इन द राइट साइड देयर इज ए वर्क स्पेस, इट इज द वर्क स्पेस विंडो। सो इट इज ब्लैंक एट प्रेजेंट, है ना? सो इन द कमांड विंडो, if I write x equal to 5, if I write x equal to 5 and press enter, then see the workspace, a variable x is generated over here, x is automatically generated over here. So workspace is the space in which all the variables are seen over here. ठीक है, सपोज मैंने लिखा x equal to 5, है ना? Similarly, if I write y equal to 10, you see the workspace. As soon as I press enter, so there will be y variable. So x and y, two variables are now existing in workspace window, है ना? Similar, another command I can try, z equal to
सर ये X, सर रिपीट कर दीजिए सर एक बार। हाँ एक बार मैं रिपीट करता हूँ। देखिए रिपीट कर देता हूँ। मैं इस पूरी विंडो को पहले क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए कमांड है CLC। सो आई एम यूजिंग CLC, है ना। CLC आप लोगों ने C++ भी किया होगा, तो वहां पे भी शायद CLS कुछ कमांड होती है क्लियर स्क्रीन के लिए। यहाँ पर CLC है, तो CLC से आपकी ये विंडो क्लियर हो गई है, कमांड विंडो। मेरे को अभी कमांड विंडो में काम करना है। तो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था कि एक तो फोल्डर विंडो होती है, दिस इज द फोल्डर विंडो, so this is the editor window, this is the command window, this is the workspace window, and this is the command history। मैंने कौन कौन सी कमांड अभी लगाई हैं वो करंट कमांड यहाँ पे रहती हैं। जैसे x = 5 मैंने अभी लगाया था, y = 10 मैंने ट्राई किया, उसके बाद मैंने CLC ट्राई किया। तो ये आपकी करंट कमांड्स यहाँ पे शो करता है। तो फिलहाल मुझे एडिटर में काम नहीं करना है, एडिटर में काम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मैं अभी एडिटर विंडो को क्लोज कर रहा हूं। तो अभी देखो कितनी विंडो है टोटल। करंट फोल्डर 1, एडिटर 2, कमांड विंडो 3, वर्क स्पेस 4, कमांड हिस्ट्री 5, और ऊपर ये काफी सारी मेन्यू बार्स है ना, टूल बार है ऊपर, इनका भी यूज करेंगे हम। तो कुल मिलाकर 5 विंडो आपके सामने देख रही हैं, जिसमें से मैं एडिटर विंडो को क्लोज कर रहा हूं। आई एम क्लोजिंग द एडिटर विंडो। तो एडिटर विंडो क्लोज करते ही आपने क्या देखा, कमांड विंडो अब आपकी बड़ी हो गई है ना। तो कमांड विंडो के अंदर यदि मैं कोई कमांड लिखूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने अभी x लिखा था, x = 5, तो एक x नाम का वेरिएबल वर्क स्पेस में जनरेट हो गया था। जब मैंने लिखा y = 10, तो y नाम का वेरिएबल जनरेट हो गया था। ठीक है। अब मान लीजिए मैं लिखता हूं a = 45, तो अब क्या होना चाहिए, वर्क स्पेस के अंदर एक a नाम का वेरिएबल जनरेट होगा। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, वो आपको a की वैल्यू यहां पे दिखाएगा, और वर्क स्पेस के अंदर एक a नाम का वेरिएबल जनरेट हो जाएगा। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि जो भी आप कुछ करेंगे तो वेरिएबल ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ठीक है। अब मान लीजिए आप लिखते हैं ओनली x, तो जैसे ही आप x लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये x की वैल्यू ऑलरेडी कितनी हमने डिफाइन कर रखी है, 5। तो ये हमको उस वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सो इट इज गिविंग वैल्यू x = 5, है ना। यदि हम a को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो a को हम लिखकर एंटर करेंगे, तो ये हमको a की वैल्यू रिटर्न करेगा। a की वैल्यू कितनी है, 45। ठीक है। तो अभी जो कह रहे थे कि दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, है ना। यस सर ओके ओके, है ना। अब देखो स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। CLC मैंने इसे CLC कर लिया। सर हाँ हाँ सर ये सब मोबाइल में भी सेम काम करेगा? हाँ, सेम काम करेगा। वहां कमांड, ये सारी विंडो आएंगी, कमांड विंडो आएगी, वर्क स्पेस विंडो आएगी, है ना, सब कुछ आएगा। स्टूडेंट वर्जन है, वो आप प्ले स्टोर में देखेंगे, गूगल प्ले में, तो वहां से आप नाम बता डाउनलोड दीजिए कर आपका। स्टूडेंट वर्जन मैटलैब ऐप करिएगा, मैटलैब ऐप APP, ये सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा, है ना। मैंने डाउनलोड किया हुआ है अपने मोबाइल में, तो आराम से आ लैपटॉप जाएगा। में भी सर करना हाँ, है? लैपटॉप में तो बहुत ही अच्छा है। आप लैपटॉप यूज करें तो दैट इज मोर गुड। सर आपने मोबाइल में डाउनलोड किया तो उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, लिंक शेयर कर दूंगा। आई विल शेयर द लिंक ऑन योर ग्रुप, है ना। मैंने अभी वीडियो शेयर किए हैं आपको 2 मॉर्निंग में, है ना। ग्रुप में मैं एडेड हूँ, तो मैं वहां पर लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक नई चीज आपको बताते हैं। एक चीज होती है रेंज ऑपरेटर। क्या होती है, रेंज ऑपरेटर। तो रेंज ऑपरेटर का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने लिखा z = 1:7, तो ये जो कोलन वर्ड है ये रेंज कहलाता है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो इसका आउटपुट आप देखिएगा। तो क्या आउटपुट आप देख पा रहे हैं, z = 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो रेंज ऑपरेटर है, ये फर्स्ट वैल्यू 1, लास्ट वैल्यू 7 विथ ए इंक्रीमेंट ऑफ 1। तो जो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट है वो 1 माना जाता है मैटलैब में, है ना। और यदि आप इंक्रीमेंट चेंज करना चाहते हैं, कि मान लीजिए आप 1 से, अभी आप एक और रेंज ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिखा 3:30, तो जैसे आपने 3:30 लिखा एंड प्रेस एंटर, तो देखिए अब यहां पे आपने वेरिएबल दिया हुआ था z, यहां पे आपने वेरिएबल नहीं दिया है। तो मैटलैब क्या करता है,
एक आंसर वेरिएबल ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक वेरिएबल बनेगा, वर्क स्पेस में भी बनेगा और यहां पर भी दिखाई देगा। प्रेस एंटर तो देखिए आंसर वेरिएबल अपने आप बनता है, बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होता है, ये आपको वर्क स्पेस में भी दिखाई दे रहा है। और आपकी रेंज है 3 से 30। सो फर्स्ट वैल्यू इज 3, लास्ट वैल्यू इज 30 विथ ए डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1। अब मान लीजिए मैं इसी कमांड को ऐसे चलाता हूं, 3 with a increment of 5 and last value is 30। तो देखो अब मैंने यहां पे 3 वैल्यू दी हैं, फर्स्ट वैल्यू इज 3, लास्ट वैल्यू इज 30 with a increment of 5। तो अब इसका आउटपुट देखिए आप। सो दिस इज द आउटपुट, 3 फर्स्ट वैल्यू, 3 plus 5 8, 8 plus 5 13, 18, 18 plus 5 23 and 28 है ना। 28 plus 5 कितना होगा? 33। लेकिन वो हमारी लिमिट से बाहर जा रहा है, इसलिए उसने मैटलैब ने वहां पे क्लोज कर दिया। तो ये मैंने आपको क्या बताया है? रेंज ऑपरेटर बताया है ना। तो इस रेंज ऑपरेटर की हेल्प से आप 19 की टेबल बना सकते हैं, कोई भी टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा 19 विथ ए इंक्रीमेंट ऑफ 19, लास्ट वैल्यू इज 190। ठीक है, तो आप देखिएगा 19 की टेबल बन जाएगी, 19, 38, 57 लाइक दैट। ठीक है, अब मान लीजिए इसी कमांड को मैं दोबारा चलाता हूं और मैं एक इसमें डैश लगा देता हूं, डैश। हाँ, म्यूट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, है ना। 19 फर्स्ट वैल्यू इज 19, इंक्रीमेंट इज 19, लास्ट वैल्यू इज 190 और मैंने एक डैश लगा दिया है। तो डैश का मतलब आप जानते हैं ट्रांसपोज होता है मैथमेटिक्स में, डैश मींस ट्रांसपोज। तो अभी आपको जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वो आपको वेक्टर हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वो आपको वर्टिकल वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? वर्टिकल में, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है। तो मैं इसको दोबारा करता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, इसको एक मैट्रिक्स में बंद करूंगा। आई विल क्लोज, दिस इज ए मैट्रिक्स। सो 19, 19, 190 एंड देन डैश, डैश मींस ट्रांसपोज, प्रेस एंटर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी 19 की टेबल बन गई है वर्टिकल फॉर्म में। तो सिमिलर फैशन में आप कितना भी आगे तक, कितना भी इस तरह से एपी बना सकते हैं। ठीक है, तो रेंज ऑपरेटर आपको समझ में आया। इसमें यदि हम दो वैल्यू देंगे, मान लीजिए मैंने फर्स्ट वैल्यू 21 दी और लास्ट वैल्यू 90 दे दी, तो अब ये इंक्रीमेंट कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। कितना इंक्रीमेंट माना जाएगा? 1। तो देखिए 21, 22 लाइन से वैल्यू आ जाएंगी सारी की सारी। सर केवल और होल नंबर में ही बात करेंगे, डेसिमल में बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, डेसिमल में इंक्रीमेंट दे सकते हैं। जैसे इसी कमांड में देखिए 21 और इसके बाद आपने मान लीजिए इंक्रीमेंट दिया 3.5 का एंड लास्ट वैल्यू इज सपोज 90। ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंट कितना है? 3.5, प्रेस एंटर। तो देखिए 21 प्लस 3.5 24.5 है ना। तो ये रियल वैल्यू पर, डेसिमल पर, इंटीजर पर, सभी पर काम करता है। इट इज वेरी वास्ट सॉफ्टवेयर, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके, तो रेंज ऑपरेटर इज क्लियर। अब मैं स्क्रीन मेरी चूंकि भर गई है, इट इज क्वाइट फुल, सो आई एम यूजिंग सीएलसी कमांड टू क्लियर द स्क्रीन अगेन, है ना, क्लियर द स्क्रीन। तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। देखिए स्क्रीन क्लियर हो गई, लेकिन वर्क स्पेस क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब मेरे वेरिएबल अभी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो मान लीजिए मैं जेड की वैल्यू देखना चाहूं तो मैं जेड लिखकर प्रेस कर सकता हूं। जेड की वैल्यू 127 है। ठीक है, मान लीजिए आप इस वर्क स्पेस को भी क्लियर करना चाहते हैं, इस वर्क स्पेस को भी क्या करना चाहते हैं? ब्लैंक करना चाहते हैं। तो आपको एक कमांड होती है क्लियर। तो यू जस्ट राइट क्लियर, प्रेस एंटर। तो देखिए जैसे ही आपने प्रेस किया तो आपका वर्क स्पेस अब क्या हो गया है? खाली हो गया है। ठीक है, मैं अभी तक का काम समराइज करता हूं, नोट करते जाइएगा जरूर। एक मैंने आपको सीएलसी कमांड बताई है जो स्क्रीन को क्लियर करती है। एक मैंने आपको क्लियर कमांड बताई है जो वर्क स्पेस को क्लियर करती है। एक मैंने आपको रेंज ऑपरेटर बताया है ना। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू देने पर डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 माना जाता है, और यदि मैं 3 वैल्यू देता हूं तो उसके अकॉर्डिंग वो एपी सीरीज बन जाती है ना। अच्छा, इंक्रीमेंट हम नेगेटिव भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा
first value is 10 and increment is -3, and let I want to go to -90. So first value is 10, last value is -90 with an increment of -3. तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है. So you are getting first value 10, 10 minus 3 7, 7 minus 3 4 and so on, है ना. And the last value is -89, and -89 minus 3 is -92 because our last limit is -90. So -90, this is end over, end यहां पर ही end हो जाएगा. So I think it is clear. I am again using CLC, correct. अब देखिए एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि मान लीजिए मेरा दो वेरिएबल है मेरे पास. आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा है ना. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c. आपने पढ़ा है ना ज्योमेट्री में, 10th या 11th में भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. y इक्वल टू mx प्लस c होती है ना. तो चलिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. तो देखो y इक्वल टू mx प्लस c में एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है. दो ही तो वेरिएबल है. तो सबसे पहले x वेरिएबल बना लेते हैं और मान लेते हैं कि इसकी रेंज है 1 से लेके, कुछ भी रेंज दे देता हूं, मान लीजिए 1 से लेके 12 तक रेंज है इसकी. कितनी रेंज है? 1 से लेके 12 तक रेंज है. ठीक है. अब मैं जैसे ही प्रेस करूंगा एंटर तो मुझे क्या दिखाई देगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये दिखने वाला है. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 है. x की वैल्यू डिसाइड हो गई और x एक वेरिएबल बन गया. देखिए यहां पर. अब मैं दूसरा वेरिएबल बना रहा हूं y इक्वल टू mx प्लस c में. तो दूसरा वेरिएबल क्या है? y. और y इक्वल टू mx प्लस c होता है. तो m क्या होता है उसमें? स्लोप होती है लाइन की. m इज द स्लोप. तो चलिए मान लेते हैं कि स्लोप की वैल्यू 3 है ना. कुछ भी मान लीजिए, 3 4 5 जो भी आप मानना चाहें. तो मैं अभी 3 मान लेता हूं. तो मैंने लिखा 3 तो m की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाई x. मल्टीप्लाइड बाई x. अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 12 भी है. x की 12 वैल्यूज हैं. तो जब x की 12 वैल्यूज हैं तो फिर y की भी 12 वैल्यूज हो जाएंगी. ठीक है ना. जब x के अंदर 12 वैल्यूज हैं तो मल्टीप्लाई करने पर y की भी 12 वैल्यूज हो जाएंगी. तो अभी मैं इसको 3x प्लस समथिंग नहीं लिख रहा हूं, केवल y इक्वल टू 3x ही लिख रहा हूं और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं. देखिए क्या होता है. 3 का मल्टीप्लाई हो गया. 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 11 3 जा 33, 12 3 जा 36. Are you getting my point? So x is 1 to 12, y is 3 to 36, है ना. So y equal to 3, y equal to 3. c 0, मैंने अभी c 0 ले लिया है ना. मैं अभी एक बार 0 करके दिखाऊंगा, फिर एक बार बिना 0 करके भी दिखाऊंगा. तो जब आपको पता है कि जब c की वैल्यू 0 होती है तो वो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है ना. 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो उसमें कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है. तो अब ये जो लाइन है y इक्वल टू 3x है ना. तो इस लाइन को यदि मुझे प्लॉट करना है तो देखिए मैं क्या करूंगा. प्लॉट x, y. प्लॉट x, y. तो फर्स्ट वेरिएबल क्या है? x है. x के अंदर क्या वैल्यूज है? 1 से 12. y के अंदर क्या वैल्यूज है? 3 से 36. जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए आपको क्या होता है. आपके सामने एक ग्राफिक विंडो खुल जाती है, एक फिगर विंडो खुल जाती है. आपको दिखाई दे रही है ना ये विंडो? आर यू एबल टू सी इट? Yes, sir. दैट्स गुड. तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है y इक्वल टू No, sir. 3x. No, दिस इज. sir. ये- ग्राफ ब्लैंक दिख रहा है. सर लाइन नहीं दिख रही, ग्राफ दिख रहा है बस. अच्छा ग्राफ दिख रहा है, लाइन नहीं दिख रही है आपको, है ना. ये सर ब्लैंक ग्राफ दिख रहा है सर. मैं समझ गया. ये मुझे दिख रही है क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे मैं वर्क कर रहा हूं और मैंने आपको स्क्रीन तो ये वाली शेयर कर रखी है. अब ये दूसरी स्क्रीन खुल गई ग्राफिक्स वाली. तो दूसरी स्क्रीन मुझे तो दिख रही है लेकिन आपको इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने आपको ये शेयर नहीं की है. तो मैं जरा इसको शेयर कर देता हूं. मेरे पास ऑप्शन है शेयर करने का. लेट्स आई एम शेयरिंग इट. मैं इसको पुरानी विंडो को हटाता नहीं हूं, एक न्यू शेयर कर देता हूं मैं, है ना. दैट्स गुड. तो मैं अभी न्यू शेयर में जाता हूं
और न्यू शेयर के अंदर ये फिगर 1 वाली जो विंडो है इसको मैं शेयर कर देता हूं। तो मेरे ख्याल से अब आपको दिख रही होगी ये। यस सर, अब आ Yes, गई। sir, दिख रही है सर। गुड है ना। तो देखिए ये ऐसा होता है कि जब मैं अपने सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं तो मैंने जिस विंडो को शेयर किया है मैं उससे कितनी भी विंडो खोलता जाऊंगा वो मुझे दिखती जाएंगी, लेकिन आपको वो जब ही दिखेंगी जब मैं उनको इंडिविजुअली शेयर करूंगा आपको। तो अभी मैंने आपको ये शेयर कर दिया, आप अब प्रैक्टिस कर लेंगे अपने लैपटॉप और मोबाइल पर। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन कहां से पास हो रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू 3x, करेक्ट। अब चलिए हम c की वैल्यू कुछ रख देते हैं। तो मान लीजिए मैंने y इक्वल टू 3x प्लस सपोज मैंने रख दिया 7, c की वैल्यू 7 है। तो अब ये लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं होगी, अब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से कट करेगी y एक्सिस को। तो चलिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है। जरा चेक करिए 3x प्लस 7 ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 3 जा 3, 3 प्लस 7 10। अब वो वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है, फिगर वाली ना। अच्छा अब ये, अच्छा ये वाली ओके, अच्छा अब आपको मैं समझ गया, आपको मैटलैब विंडो नहीं दिख रही है अब, ग्राफ दिख रहा है अब आपका प्लॉट। हाँ हमारा ग्राफ दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपको मैं रिज्यूम शेयर करता हूं। अब बताइए इस वक्त क्या दिख रहा है आपको। ग्राफ ही दिख रही है सर ग्राफ ही दिख रहा है सर। चलिए ग्राफ को मैंने बंद कर दिया है ना, ग्राफ को मैंने बंद कर दिया। हाँ अब कौन सी दिख रही है सर ब्रिज दिख रहा है। अभी नहीं दिख रही है कुछ, अभी नहीं दिख रही है ना। चलिए मैं मैटलैब को दोबारा से शेयर कर देता हूँ आपको। अब आपको पूरा स्क्रीन नहीं शेयर कर दीजिए, वो ऑप्शन आता है उसमें। हाँ हाँ यू आर स्क्रीन शेयरिंग। अब देखिए आपको मैटलैब विंडो दिखाई दे रही होगी। यस यस ओके तो देखिए मैंने क्या किया है, y इक्वल टू 3x प्लस 7 एक कमांड चलाई है, दोबारा से चला देता हूं मैं इस कमांड को। y इक्वल टू 3x प्लस 7, या मैं पहले क्लियर स्क्रीन कर लेता हूं सारा क्लियर डाटा। मत करिए सर, इसी पे कर दीजिए। इसी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा y इक्वल टू 3x प्लस 7, प्रेस एंटर। तो आपको वैल्यूज दिख रही होंगी 10 13 है ना। तो Yes, देखिए 1 3 जा 3, 3 प्लस 7 10 है ना, 2 3 जा 6, 6 प्लस 7 13, एंड लास्ट वैल्यू चेक कर लीजिए 12 3 जा 36, 36 plus 7 43. So all the data is correct. Now Yes, sir. I am giving a command. And command is plot xy. Plot xy. तो अब जो लाइन बनेगी वो लाइन फिर आपको नहीं दिखेगी, मुझे दिखेगी, समझ रहे हैं आप। जब मैं आपको शेयर करूंगा तब वो दिखाई देगी। तो चलिए मैं पहले इसको बना लेता हूं। ये लाइन आ गई मेरे पास, हाँ, और मैं इसको चाहूं तो आपको शेयर कर सकता हूं उसी तरह से, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम एक और नई चीज सीखते हैं, इसको मैं CLC कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा एक वेरिएबल बनाया d इक्वल टू मैंने लिखा 45:78। एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आएगा बताइए, 45 46 ऐसे बढ़ते हुए 78 तक आएगा, 78 तक आएगा, है ना। अब मान लीजिए मैं यहां पे एक सेमी कोलन लगा दूं, क्या लगाया है मैंने लास्ट में, सेमी कोलन। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिएगा, पहले बिना सेमी कोलन के दिखाते हैं आपको, बिना सेमी कोलन के पूरा आउटपुट दिखा रहा है। अब इसी कमांड में यदि मैंने सेमी कोलन लगा दिया तो आप देखेंगे कि आउटपुट दिखाई नहीं रहा है। तो इस सेमी कोलन को हम कहते हैं सप्रेस ऑपरेटर। सप्रेस ऑपरेटर, इसका मतलब आउटपुट मेमोरी में तो कैलकुलेट होता है लेकिन स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब ऐसा करने का फायदा क्या है, जब लेंथी प्रोग्राम्स होते हैं तो हम सेमीकोलन ऑपरेटर लगा करके अपना जो एग्जीक्यूशन टाइम है प्रोग्राम का उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में बहुत समय लगता है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि एक वेरिएबल है z और z इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 to 1000। ठीक है, अब मैटलैब के लिए 1 से लेके 1000 तक लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो फटाफट लिख देगा। ये देखिए लिख दिया इसने 1 से 1000, लेकिन आपको बोला जाता पेन पे लिखिए जरा 1 से 1000 तक, तो आपको कुछ समय लगता, यू नीड सम टाइम। अब देखिए मैटलैब को भी समय लगता है। मैं अब इस वैल्यू को 1000 की जगह थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं,
कितनी हो गई वैल्यू? कितनी जीरो है जरा काउंट करिए। हाउ मेनी जीरो? 10 करोड़ हो गया या 1 करोड़ हो गया, जो भी है। चलिए मैं एंटर प्रेस करता हूं। देखिए क्या मैटलैब लिख पा रहा है इतनी जल्दी? टाइम ले रहा है। देखो बिजी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ, बिजी। मैटलैब इज बिजी इन राइटिंग बिकॉज द डाटा इज सो लॉन्ग। तो मैटलैब को भी बिजी होना पड़ गया। 1 से 1000 तक में कोई बिजी पता नहीं चला हमें, लेकिन जब हमने डाटा 1 करोड़ 10 करोड़ कर दिया तो मैटलैब स्क्रीन पर लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है, इसको टाइम लग रहा है। तो यदि मैं सेमीकोलन लगा दूंगा तो ये डाटा मेमोरी में कैलकुलेट हो जाएगा और स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, और ये काम बिल्कुल सेकंड्स में हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हो। तो इस तरह से हम अपना एग्जीक्यूशन टाइम लेंदी प्रोग्राम्स में, लेंदी डाटा में, डाटा एनालिटिक्स में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे अब आप। अभी तक देखो 1 करोड़ नहीं, ये नहीं लिख पाया है अभी तक। 3 करोड़ के आसपास पहुंचा है ये, 10 करोड़ नहीं लिख पाया, जहां जहां भी है 36 लाख या। हाँ यस सर सेमीकोलन लगा के वो डाटा सेव हो गया हमारे पास। हाँ, देखो जब हम सेमीकोलन लगा रहे हैं तो वर्क स्पेस में वो वेरिएबल तो बन ही रहा है। देखो मैं अभी आपको इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता हूं क्योंकि ये तो बहुत टाइम लेगा, है ना। तो आप एक नई चीज और सीख लीजिए कि जब कोई प्रोग्राम लगातार चलता जा रहा है और उसे हमें बीच में रोकना है ड्यू टू एनी रीजन, तो रोकने के लिए कौन सी कमांड होती है? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी जनरली कॉपी के लिए होता है, लेकिन मैटलैब में कंट्रोल सी की हेल्प से हम टर्मिनेट करते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है और मैं देखूं कहां तक लिख पाया ये। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 6 करोड़ तक लिख गया है ना, या नहीं 65 लाख तक लिखा है, 65 लाख। अभी तो 1 करोड़ लिख ही नहीं पाया, 65 lakhs तक गया है, तो काफी टाइम लगा है इसको लिखने में। अब देखिए इसी कमांड को, सेम कमांड है ना, जितना भी है 10 करोड़ चाहे 1 करोड़ जो भी है। अब मैं सेमीकोलन इसमें लगा देता हूं और मान लीजिए मैं वेरिएबल बदल देता हूं। ठीक है, अभी जेड वेरिएबल आप कह सकते हैं कि पहले से बना हुआ था। लेट एक नया वेरिएबल बना देते हैं, लेट टीटी इज ए वेरिएबल, डबल टी इज ए वेरिएबल, है ना। वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए। सो टीटी इज ए वेरिएबल, है ना। अब इसको एंटर प्रेस करिएगा आप, ये देखिए। अब बताओ मैटलैब बिजी नहीं है, और यहां पे देखिए वेरिएबल बन चुका है टीटी। टीटी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए वर्क स्पेस में टीटी। तो मेरे ख्याल से अब आप सप्रेस ऑपरेटर का मतलब समझ गए होंगे। सप्रेस ऑपरेटर आउटपुट को सप्रेस कर देता है, स्क्रीन पर दिखाता नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन मेमोरी में हो जाती है ना, मन में हो जाती है। जैसे मैं आपसे कहूं 1 से 1 करोड़ लिखो, तो आपने अपने मन में लिख लिया, स्क्रीन पे नहीं लिखा। स्क्रीन पे लिखोगे तो आपको लॉट ऑफ टाइम चाहिए, लेकिन मन में आप समझ गए कि हाँ 1 से 1 करोड़ ये वेरिएबल स्टोर हो गया यहाँ। तो समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग इन मैटलैब। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो अगेन आई एम अप्लाइंग सीएलसी। यहां तक कोई डाउट हो आपकी तो जरा सा अभी डिस्कस कर लीजिए, है ना। मैटलैब को जड़ से समझ के चलेंगे तो ये आपको बहुत काम देगी, और आप कोई भी डाउट मत रखिए, सारी कमांड्स को प्रैक्टिस भी करिएगा। तो अभी तक जितनी भी कमांड्स हमने की हैं एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। सेमीकोलन हमने सीखा, जो वर्क स्पेस को क्लियर करती है, ये हमने सीखा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं y=mx+c को, ये भी हमने सीखा है। ठीक है, 5-6 चीजें हम सीख चुके हैं। और मेरे ख्याल से व्हाट इज द टाइम नाउ? टाइम इज 2:42। अगेन वी आर हैविंग 18 मिनट्स अभी है हमारे पास, है ना। आज जल्दी छोड़ दीजिए सर, तो आज जल्दी छोड़ दीजिए। नहीं, वी विल डिस्कस, है ना, वी विल डिस्कस इफ यू हैव एनी क्वेरी। अभी तक की कमांडों में कोई क्वेरी है आपकी? सर एक बार वापस बताइएगा आपने आज क्या क्या कराया सर। हाँ नोट करिए, हाँ नोट करिए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक लिखी है सीएलसी कमांड, और इसकी डिटेल लिख लीजिए कि दिस कमांड क्लियर द स्क्रीन। सभी लोग म्यूट कर लें अपने माइक को और नोट करें। मैं सारी कमांड्स की थोड़ी डिटेल आपको शेयर कर देता हूं। सीएलसी क्लियर्स द स्क्रीन, ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, सीएलसी क्लियर्स द स्क्रीन। मेरे को रिस्पांस दे, एक बच्चा रिस्पांस देता रहे। हो गया आपका इतना? हाँ, अब नेक्स्ट कमांड लिखिए क्लियर। डिटेल मेंशन करिए, क्लियर्स द वर्क स्पेस। क्लियर कमांड क्लियर्स द वर्क स्पेस।
ओके सर। ठीक है, अब तीसरा लिखिए, सेमी कोलन ऑपरेटर, इट इज नोन एज सप्रेस ऑपरेटर, SUPRESS, सो इट इज सप्रेस ऑपरेटर। सर दोबारा रिपीट कर दीजिए वाला। सेमीकोलन दैट इज सप्रेस ऑपरेटर, है ना, मैं यहां लिख देता हूं स्पेलिंग, सप्रेस, SUPPRESS, दिख रहा है स्क्रीन पर, SUPP, हाँ, तो दिस इज नोन एज सप्रेस ऑपरेटर। तो सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, मतलब तो आउटपुट को दिखाता नहीं है, आउटपुट को सप्रेस कर देता है, इसलिए इसका नाम सप्रेस ऑपरेटर है। ठीक है, सेमीकोलन। इसके बाद लिखिए रेंज ऑपरेटर, है ना, रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर में कोलन का यूज होता है ना, सेमीकोलन अलग है, कोलन अलग है। तो कोलन ऑपरेटर का काम क्या है, रेंज, है ना, डाटा को कोई रेंज देता है, जैसे 1 से 100 तक 5 के गैप से निकालना है मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू 1, इंक्रीमेंट इज 5 एंड लास्ट वैल्यू इज 100। तो ये एक रेंज हो गई, 1 से 100 तक का डाटा 5 के गैप से, तो आप प्रेस एंटर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 1 + 5 6 6 + 5 11, और ये लास्ट वैल्यू कहां तक गई है, 96 तक। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? सर हाँ सर 1:5 छोड़ देते हम, हाँ, तो सर 1 से 5 तक प्रिंट हो जाता होगा। हाँ, 2 वैल्यू देने पर तो देखो, मान लो आप लिखते हैं 1:5, अब आपने 2 ही वैल्यू दी हैं, 2 वैल्यू देने का मतलब होता है, मैटलब समझता है कि फर्स्ट वैल्यू 1 है, लास्ट वैल्यू 5 है, और मुझे डाटा का रेंज मिल गया, और डिफॉल्ट इंक्रीमेंट अपने मन से 1 मान लेता है वो। ओके सर। ठीक है, तो आपकी जो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू है वो इसमें छुपी हुई है, और वो 1 है। यदि आप इस कमांड को देके भी चलाओगे, जैसे 1 1 5, है ना, तब भी आंसर वही आएगा, बिना 1 के भी चलाओगे तब भी आंसर वही आएगा। सर अगर हमें, हाँ बोलिए, अगर ये जो वैल्यू आपने वर्क स्पेस में लिखी है दोबारा चेंज करनी है, तो पहले इनको डिलीट करना होगा ना? कौन सी, ये वाली वैल्यू इसको, ये वाली वैल्यू इसको? यस सर, आपने अगर वहाँ पे जैसे कि जो हमारी स्क्रीन है उस पर अगर ये वैल्यू मतलब इसको चेंज करके चलाना है, तो पहले इसको यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है क्लियर करना, आप नई वेरिएबल बना लीजिए, नई वेरिएबल की कोई लिमिट नहीं है, आप हजारों वेरिएबल बना सकते हैं। नहीं, क्लियर को इस्तेमाल करके बताएंगे। हाँ क्लियर, हाँ क्लियर, देखिए जैसे ही मैं लिखूंगा क्लियर, तो क्लियर से क्या होगा, कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल हैं। यस सर। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये 6 वेरिएबल डिलीट हो जाएंगे मेमोरी से, फिर मैं इन्हें कॉल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब ये मेमोरी से ही हट गए। ठीक है, तो पहले देखिए मैं कॉल करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने टीटी को कॉल करना है, तो मैंने टीटी प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है, तो टीटी की वैल्यू आ गई, देखो टीटी की वैल्यू करोड़ों में थी, है ना, बिजी चल रहा है मैटलैब। तो अब मैंने इसे क्या किया, Ctrl+C से टर्मिनेट कर दिया। ये भी नोट कर लीजिए, Ctrl+C इज आल्सो कमांड टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, नोट डाउन, Ctrl+C इज द कमांड टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, करेक्ट। अब मान लीजिए मुझे y कॉल करना है, y, तो देखिए मैंने y कॉल कर लिया, y की वैल्यू 10 13 ये आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए मैं y को इस तरह से कॉल करता, सेमीकोलन लगा करके, y सेमीकोलन, y सेमीकोलन, मान लीजिए मैं इस तरह से लगा देता, y सेमीकोलन, प्रेस एंटर, तो देखिए आउटपुट सप्रेस हो गया। सेमीकोलन क्या करता है, आउटपुट को सप्रेस कर सकता है। अब मान लीजिए आप क्लियर कमांड यूज करेंगे, तो ये 6 के 6 वेरिएबल हट जाएंगे मेमोरी में से, और उसके बाद आप y को कॉल करेंगे तो उसमें एरर आएगी, मैटलैब कहेगा y इज नॉट डिफाइंड, है ना, y इज, हाँ देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, ये 6 के 6 हट जाएंगे, और अब मैं y को कॉल करता हूं तो ये कहेगा y इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड फंक्शन और अनडिफाइंड वेरिएबल y। अब मैटलैब को पता ही नहीं है कि y क्या है। तो आई थिंक अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। डिस्कशन बहुत, हाँ ये रिदम जरूरी है, डिस्कशन जरूरी है ना, जो भी आपका डिस्कशन। हाँ हाँ बोलिए सर, अगर हम मैथमेटिकल कंडीशन को फॉल्स वाली मैथमेटिकल कंडीशन लगाएं तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करेगा? हाँ सब चलता है इसमें, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, है ना, वो सब। जैसे आप सर, हाँ सर रेंज, जैसे आपने रेंज ऑपरेटर यूज किया, तो रेंज जैसे मैंने पहले 10 दिया और
कॉलन रेंज ऑपरेटर लगाया फिर -10 लगाया, तो आउटपुट देगा ये? हाँ, आपने क्या लिखा? 10 लिखा, 10 के बाद में रेंज ऑपरेटर लगाया फिर -10। अच्छा, -10। तो अब इसमें देखो क्या होगा, आपने दो वैल्यू प्रोवाइड करी है। फर्स्ट वैल्यू तो हो गई 10 और लास्ट वैल्यू हो गई -10। ठीक है। अब मैटलैब डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितना मानता है? 1। तो वो 10 में क्या जोड़ेगा? 1। तो 10 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11, है ना? 11 तो क्या वो लास्ट वैल्यू को रीच कर पाएगा? नो सर। नहीं। तो हाँ, तो इसलिए इसका आउटपुट जो है आएगा ही नहीं। एम्प्टी मैट्रिक्स, इट इज ए एम्प्टी मैट्रिक्स। ये खाली मैट्रिक्स है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये लॉजिकल है ही नहीं, एम्प्टी है ये मैट्रिक्स। तो नेगेटिव वैल्यू प्रिंट करता है ना? हाँ, बिल्कुल करता है। जैसे कोई माइनस नेगेटिव लगाना पड़ेगा। हाँ, ले लीजिए -45 और आप रेंज ले लीजिए जो भी आपको लेनी है। मान लीजिए आपने ले लिया -3 ले लो, तो ये रेंज आपको दे देगा। ये देखिए सब में +1 करता जा रहा है, -3 तक आ गया। So it works on negative values also, point values also, integer values also, each and every type of values it works. It is a very good software, very interesting. If you learn it, then you can publish a good research paper of your project. You can apply this in your research. सर एक बहुत क्वेश्चन बल्कि है सर। हाँ, बोलिए। लैपटॉप हैंग करने लगता सर, है। जैसे कि सर अगर वर्क स्पेस में सब क्लियर करना हो तो क्लियर कमांड डालेंगे सर, वेरिएबल सब वेरिएबल हट जाएंगे। ठीक है। सर अगर किसी एक वेरिएबल को हटाना हो तो? बहुत आसान है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ, है ना? s = 8, एक वेरिएबल तो मैंने बना लिया s। ठीक है। एक मैंने बना लिया q = सपोज मैंने लिख दिया 5s, 5 × s। तो q की वैल्यू 5 × 8 = 40 हो जाएगी। 40 आ गई। अब देखो q बन गया, s बन गया। एक और बना लेते हैं, चलो वैल्यू मान लेते हैं कि वो वैल्यू w है। w की वैल्यू 90 ले लेते हैं, चलो, है ना? 90 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं करेक्टर में लेना चाहूं तो मैं ERT ऐसे भी दे सकता हूं कोई वैल्यू। ये हो गई। तो अब देखो w जो है कुछ कैसा वेरिएबल बना है? करेक्टर वेरिएबल बना है। ABC लिखा आ रहा है इसके ऊपर, और जो ऊपर के निशान है वो कुछ डिफरेंट तरीके के हैं, मतलब वो कुछ इंटीजर या न्यूमेरिक वेरिएबल है। तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल है और ये कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल है या करेक्टर वेरिएबल है। तो अब देखिए वर्क स्पेस में 4 वेरिएबल हैं और क्वेश्चन आपका ये था कि आप किसी एक को क्लियर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप q को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? क्लियर स्पेस q। तो अब केवल q क्लियर होगा, बाकी एग्जिस्ट करेंगे। प्रेस एंटर। देखिए वर्क स्पेस से q हट गया, बाकी तीनों बचे हुए हैं। अब यदि आप q को कॉल करेंगे एरर आएगी, लेकिन आप s को कॉल करेंगे एरर नहीं आएगी, क्योंकि s तो अवेलेबल है। एक बार फिर से बताऊं? अंडू का ऑप्शन है सर इसमें? हाँ, अंडू का नहीं। Once the variable is deleted from the memory, it cannot be recovered, है ना? इसमें एक चीज होती है कि मान लीजिए कि ये वर्क स्पेस है और इसमें मान लो 15-20 वेरिएबल बने हुए हैं और आप चाहते हैं कि ये 15-20 वेरिएबल मेरे फ्यूचर यूज में कभी मुझे काम में आ जाए, है ना? तो आप इस पूरे वर्क स्पेस को सेव करके रख सकते हैं। तो ये कि वर्क स्पेस के फॉर्म में मेमोरी में सेव हो जाएगा। जब आप इस वर्क स्पेस को कॉल करेंगे तो सारे के सारे वेरिएबल इसमें अपने आप आ जाएंगे। तो आप सेव करके रख सकते हैं, लेकिन आपने यदि डिलीट कर दिया है तो फिर ये रिकवर नहीं होंगे। यदि आपने डिलीट करने से पहले सेव कर लिया है तब तो वो सेव है ही है। इस तरह से है ना? सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। ये क्लियर वाला? यस हाँ, सर, यस सर। चलिए क्लियर वाला देखो। CLC से तो मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी और मैं अभी सारे वेरिएबल को क्लियर कर देता हूँ, है ना? अब जो कुछ नहीं है ना, तो स्क्रीन पे कुछ है ना इधर कुछ है। अब मान लो मैंने पहला वेरिएबल बनाया x = मान लीजिए 98, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बना दिया y = सपोज मैंने लिखा 76। तीसरा वेरिएबल बना दिया z = सपोज लिखा 43, ठीक है। 3 वेरिएबल बन गए। यहाँ दिखाई दे रहे हैं 3 वेरिएबल। अब आप केवल इनमें से किसी एक को डिलीट करना चाहते हो, है ना? तो आपकी कमांड क्या होगी? क्लियर तो लिखना ही पड़ेगा, स्पेस देने के बाद वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो कौन से वेरिएबल को आप डिलीट करना चाहते हैं? x को, y को या z को? जो भी आपकी चॉइस है।
हाँ वाई को कर लेते हैं, तो वाई प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए और ध्यान दीजिए वर्क स्पेस पर। ये देखिए वाई खत्म हो गया। वाई खत्म। अब आप वाई को कॉल करेंगे वो बोलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि वाई है ही नहीं। आपको समझ में आ गया होगा। जेड को कॉल करेंगे, जेड कॉल हो जाएगा। ठीक है। सर, हाँ बोलिए। सर हमें इसमें कमांड विंडो में से डिलीट करना होता है सर? कमांड विंडो में से ये पूरा मैटर? नो सर, किसी एक चीज को। कमांड विंडो में से किसी एक चीज को डिलीट करना चाहते हैं आप? Yes, ऐसी को हाँ नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और कमांड विंडो में से आप कुछ मैटर को डिलीट नहीं कर पाएंगे। पूरा का पूरा एक साथ ही डिलीट होता है कमांड विंडो। और इसमें ना स्पेस की कोई कमी नहीं होती है, ये तो बढ़ता चला जाता है। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेस। आप बढ़ाते रहिए उसको, विंडो बढ़ती जाती है। जैसे सर शुरू में आपने कमांड विंडो को बड़ा किया, मैक्सिमाइज किया, तो हाँ। उसके ऊपर जो चीज था उसको हटाया, वो एडिटर को हटाया था। एडिटर दोबारा लाना हो तो क्या करना होगा? बहुत आसान है। नई फाइल खोलेंगे, यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट है ना, ये न्यू स्क्रिप्ट ऑप्शन लेफ्ट में। इफ यू विल क्लिक ऑन द न्यू स्क्रिप्ट, देन एडिटर विंडो विल ऑटोमेटिकली कम ओवर हियर। ओके सर। ठीक है, ये काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम एडिटर के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे, है ना, और उसके फायदे बताएंगे कि एडिटर में प्रोग्राम लिखने के क्या फायदे हैं एज कंपेयर टू कमांड विंडो के। सर 5 कमांड लिखवाए आपने अभी, और हाँ। लिखवाने सर? हाँ 5 कमांड जरा बोल दीजिए क्या क्या है। सर CLC क्लियर, Right. हाँ सप्रेस ऑपरेटर, रेंज हाँ। ऑपरेटर, हाँ और कंट्रोल+C टर्मिनेट के लिए। कंट्रोल+C टर्मिनेट के लिए। और प्लॉट कमांड, स्टेट लाइन में प्लॉट। हाँ प्लॉट और लिख लीजिए। और सर इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट माइनस वाला? हाँ वो रेंज में ही है, वो रेंज ऑपरेटर के अंदर ही है ना। 3 वैल्यू देकर, और हाँ वो रेंज के अंदर ही आ जाएगा, उसी के पार्ट्स कर सकते हो। तो प्लॉट को कर लीजिए, प्लॉटिंग ए स्टेट लाइन, है ना। तो आई थिंक अब क्लास का टाइम होने को हो रहा है। 2:55 इज देयर, है ना। अगेन अभी मैं एक कमांड और बता देता हूं आपको, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तो। अच्छा अभी कोई और क्वेरी है आप किसी की अभी तक? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कर देना सर। हाँ लिंक शेयर कर दूंगा ऐप का, है ना। सर वन मोर क्वेरी इज देयर। हाँ बोलिए। ये सर आपने जो करंट फोल्डर है इसको अगर चेंज करना है तो वो कैसे करना है? देखो यहाँ ये आप जब माउस यहाँ लाएंगे ना, ये वाले ऑप्शन पे, ओके तो यहाँ ये ब्राउज, देखो लिखा भी आ रहा है ब्राउज फॉर फोल्डर आ रहा है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लास्ट में बताया था आपने, क्या बताया था? कंट्रोल+C टर्मिनेट करने के लिए। कोई प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है और वो हमें रोकना है बीच में, क्योंकि हम इतना वेट नहीं कर सकते ड्यू टू रीजन। मान लीजिए प्रोग्राम कभी कभी इतने लंबे बन जाते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं तो 2-2 घंटे 10-10 घंटे तक प्रोग्राम चलते हैं। यस सर। और मान लीजिए मैंने प्रोग्राम चला दिया और अचानक मुझे पता लगा अरे यार मैं ये चीज देना तो भूल गया। ऐसा कभी कभी होता है ना कि अरे यार ये वाली गलती हो गई, तो प्रोग्राम चलाने का फायदा ही क्या है। तो हमको फिर बीच में प्रोग्राम को टर्मिनेट करके दोबारा से रीरन करना पड़ता है सही करने के बाद। तो हम इसको कंट्रोल+C से टर्मिनेट कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद जो भी हमारा करेक्शन रह गया था उसे करने के बाद दोबारा से रीरन कर सकते हैं। ओके सर। और कोई क्वेरी? सर ये मैटलैब का सिग्निफिकेंस क्या है डिजाइनिंग में? देखो मैटलैब एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसके अंदर बहुत सारे टूल है। मतलब इसमें ना आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई हिस्टोरिकल डाटा है पुराना, है ना, मान लीजिए किसी कंपनी का कोई डाटा है पिछले 4 साल का कि ये ट्रेंड रहा है उसका, तो अगले 5-6 साल की आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो मैटलैब के द्वारा की हुई जो फोरकास्टिंग है, जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क वगैरह लगा के टूल होते हैं इसमें, तो वो फोरकास्टिंग में एरर जो आती है वो काफी कम आती है। तो इसी वजह से आजकल रिसर्चर फोरकास्टिंग में न्यूरल नेटवर्क मैटलैब टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मैंने एक चीज बताई है, ये तो समुद्र है, मतलब इसकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। इसके अंदर फोरकास्टिंग हो सकती है, इसके अंदर स्पीच रिकॉग्निशन हो सकती है ना, इसके अंदर मतलब बहुत सारे काम हो सकते हैं। और अभी हम जो काम कर रहे हैं बहुत ही बेसिक काम सीख रहे हैं, सिंपल सी कमांडों को सीख रहे हैं। ठीक है, जब हम थोड़ा सा कमांड्स में परिचित हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें नए नए टूल, सिमुलेशंस वगैरह के टूल हैं उनको सीखेंगे। इसमें जेनेटिक एल्गोरिथम भी लग सकती है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो मतलब इसमें कैलकुलेशंस होती है मेनली? हाँ, कैलकुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, फंक्शंस और हैवी कैलकुलेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो आप इसमें, है ना। इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो सकता है, रिग्रेशन एनालिसिस हो सकती है। मतलब इसका तो अंत नहीं है। ये तो ये जो बनाया है ना
इसको बनाने में करीब 250-300 लोगों की टीम बैठी थी सॉफ्टवेयर को बनाने में, और उसमें हर डिसिप्लिन के लोग थे, है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सभी ने मिलकर के बनाया है और सभी के लिए यूजफुल है। इंजीनियर्स के लिए तो है ही है, और इंजीनियर्स के अलावा यदि मैनेजमेंट पीपल है और थोड़ा सा इसका नॉलेज ले ले तो उनके लिए भी काफी यूजफुल है। तो ये बहुत अच्छा आपको टाइम मिल रहा है इस सेमेस्टर में, 6 महीने आप इसमें लगा दीजिए अच्छे से। सर इसमें जो फोल्डर जो चेंज किया था आपने, ये क्यों किया? फोल्डर कोई रीजन नहीं था चेंज करने का, मैं चाहता तो उसमें ही काम कर सकता था। बस मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए आपके पास 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आप 3 फोल्डर बना सकते हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। तो आप यहाँ से ब्राउज करके अपना फोल्डर चेंज कर सकते हैं, कभी आप प्रोजेक्ट 1 पे काम करेंगे, कभी प्रोजेक्ट 2 पे करेंगे। तो जस्ट वो एक्सप्लोरेशन बताया है, उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, तो और कोई डाउट हो, नहीं तो हम इस क्लास को अब एंड करेंगे, टाइम भी हो गया है। यस सर। हाँ, ठीक है। सर वर्जन का सर साइज सर 6 GB है। वो मेन वर्जन का होगा, स्टूडेंट वर्जन का कितना है सर लैपटॉप के लिए? सर आप लिंक भेज दीजिए मोबाइल के लिए व्हाट्सएप पर। हाँ मैं भेज देता हूँ, है ना, जरूर, श्योर। हाँ सर्च कर लो, दिख जाएगा लिंक। बिल्कुल फाइल का कितना साइज है? फाइल का साइज बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेज देता हूँ, है ना, क्लास होने के बाद। ठीक है, तो अब एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। पहले स्टॉप शेयर करूं, अब एंड करता हूं।